Hello students, today our topic is effect of water table on bearing capacity of the foundation. So what is the effect of water table height on the bearing capacity of a foundation? So let's start. Here you see in this diagram, this is ground level and this is the foundation of any structure. The width of the foundation is denoted by capital B and the depth of the foundation from the ground level is df. Okay, now we divided this whole section below the ground surface is into the three parts: the first section, second section and third section. The first section is as a depth z1 from the base of the foundation. Here is the base of the any foundation or footing. So this is the depth z1 from the base of the foundation. Second section we take is at the depth z2 from the base of the foundation, and third section is z at a depth z3 from the ground level. So at the section z3 is above the base of the footing and the value of the z3 is less than df, depth of the foundation. So you see in this figure, case 1, when the z is greater than the b, the width of the foundation, the depth of the water table is greater than the width of the foundation. The depth of the water table, this is the water table, is greater than the width of the foundation. In second case, the depth of the water table is equal to the width of the foundation or between the width of the foundation and the base of the footing. So in this second section you see that z2, z की वैल्यू जो है वो अगर यहाँ पर है, अगर वाटर टेबल इस लेवल पर है तो z2 की वैल्यू क्या हो रहेगी? z2 की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर यही z2 यहाँ पर है तो इस z2 की इक्वल टू किस हो जाएगा? विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो सेक्शन जो सेकंड सेक्शन है वो कितनी डेप्थ तक होता है? इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द फुटिंग। सो सेकंड सेक्शन इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, and the third section z3 when the water table is rise so above to the base of the footing. If the water table is rise above the base of the footing, what is the effect of the bearing capacity of the foundation? We can discuss one by one. So first of all, there is a note that when the water table is above the base of the footing, you see when the water table is above the base of the footing, गामा डैश इज जो कि होता है सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, गामा डैश इज टेकन इंस्टेड ऑफ गामा, जो कि यूनिट वेट ऑफ द सॉइल होता है उसको हम क्या लेंगे? सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इफ द वाटर टेबल इज अबव द बेस ऑफ द फुटिंग. सो डिस्कस केस वन when the water table is zone 1 and depth z1. This you see, this is case 1 when the water table is in zone 1 और जो z की वैल्यू जो है वो क्या है? b से ज़्यादा है. तो क्या इफेक्ट होगा? Since we know that the water table is influenced at a depth equal to the its width, जो कि एक फिनोमिना है कि वाटर टेबल जब फाउंडेशन को तभी इफ़ेक्ट करेगा जबकि उसकी जो डेप्थ है वो उसकी फाउंडेशन की विड्थ के इक्वल हो जाए. अगर उससे ज़्यादा डेप्थ में अगर वाटर है या वाटर टेबल है तो उसका कोई भी तरह का इफ़ेक्ट उसकी बेयरिंग कैपेसिटी पे फाउंडेशन की या फुटिंग की नहीं पड़ेगा. सो इन फर्स्ट केस z1 की वैल्यू है जो वाटर टेबल की डेप्थ है बेस से, उसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे? उसकी विड्थ से. So in that case the influence at the depth
so there is a equal to the its width. So in that case depth of the water table is greater than its width, so there is no effect of water table on the bearing capacity of soil. तो कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं हुआ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पे। तो जो कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की इक्वेशन हम जानते हैं वो क्या होती है, Q इज इक्वल्स टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू हाफ ऑफ बी गामा एन गामा। तो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, जो बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन है वो एज इट इज़ सेम रहेगी। तो इन दैट केस देर इज़ नो चेंज एंड देर इज़ नो डिफरेंस। Now discuss about the case 2. In the case 2, when the water table is in the zone 2 at the depth of equal to Z2, you see in this diagram, this is case 2. जब water table क्या हो जाए, इसकी width, ये जो इस section की total width जो depth है वो कितनी है, ये b के बराबर है, इसकी width के बराबर है। तो जब क्या वाटर टेबल इतना ऊपर आ जाए कि इसकी विड्थ से बराबर या उससे कम, तो अब उसके वजह से क्या उसकी बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर फाउंडेशन की फ़र्क पड़ेगा, वो देखते हैं। सो व्हेन द वाटर टेबल इज जोन टू एट द डेप्थ इक्वल टू Z2 वेयर Z2 इज द रेंज ऑफ 0 to B। 0 to B मीन्स एट दिस पॉइंट at this point Z2 is 0 and at this point Z2 equals to B। तो रेंज क्या होगी Z2 की, 0 से B। तो अब वही इक्वेशन हम वापस लिखते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी Q इज इक्वल्स टू सी एन सी क्यू एन क्यू गामा क्यू एन क्यू प्लस हाफ ऑफ B गामा एन गामा। तो ये इसका फर्स्ट टर्म होती है, ये इसकी सेकंड टर्म और ये इसकी थर्ड टर्म। प्रेशर बिकॉज ऑफ द कोहेजन ऑफ द सॉइल, प्रेशर ओवरबर्डन प्रेशर ऑफ द सॉइल एंड द यूनिट प्रेशर बाय द वाटर। तो इसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जब वाटर टेबल क्या हो जाए उसकी विड्थ से कम डेप्थ पर आ जाए, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पे तो इफ़ेक्ट पड़ता है, बट सेकंड टर्म अनइफेक्टेड रहती है। सेकंड टर्म अनइफेक्टेड क्यों रहती है, हम जानते हैं सेकंड टर्म किसकी वजह से, जो प्रेशर है, प्रेशर बिकॉज ऑफ द ओवरबर्डन सॉइल। सो दिस इज़ द फुटिंग एंड दिस इज़ द ओवरबर्डन प्रेशर ऑफ द सॉइल। सो द वाटर इज़ नॉट कमिंग इन दिस जोन, water is here in the only in this zone, so there is no change in this pressure, so the second term remain unaffected, so only the change which is come in the first term and third term. So to account for the water table effect, either use effect parameter C dash and phi dash and effective unit weight gamma effective और यूज़ वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। दोनों तरह के मेथड्स हम इसको निकाल सकते हैं जो भी इसमें जो चेंजेस हुए हैं। तो जनरली इन द एब्सेंस ऑफ डाटा सी फाई एंड सी डैश एंड फाई डैश इज इग्नोर्ड बट इफेक्ट ऑन द यूनिट वेट इज़ कंसिडर्ड। तो कभी कभी जब क्या होता है कि डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम सी की वैल्यू को अंदर जो चेंज है या जो फाई की वैल्यू के अंदर चेंज है उसको नेगलेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो उसके यूनिट वेट के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो इन दैट केस व्हेन द सी इज इक्वल्स टू सी गामा हम कंसीडर करके चलेंगे और फाई इज इक्वल्स टू फाई गामा कंसीडर करके चलेंगे। तो वाटर बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ ऑफ बी गामा इफेक्टिव एन गामा। तो हियर द वैल्यू ऑफ गामा इज बिकम द वैल्यू ऑफ गामा इफेक्टिव। तो गामा की जगह हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, गामा इफेक्टिव। और गामा इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, Z2 गामा प्लस बी माइनस Z2 गामा डैश अपॉन बी। यहाँ पे ये गामा क्या है, बल्क यूनिट वेट, और ये गामा डैश क्या है, ये है सबमर्ज यूनिट वेट। ओके, तो इससे हम गामा इफेक्टिव की वैल्यू निकाल देंगे। हमारे पास Z2 की वैल्यू होगी डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल फ्रॉम द बेस, और
विड्थ ऑफ द फुटिंग हमें पता ही होगी, सबमर्ज यूनिट वेट हम निकाल सकते हैं और यूनिट वेट ऑफ सॉइल हमें गिवन ही होगा। तो इस तरह से हम गामा इफेक्टिव की वैल्यू निकाल देंगे। गामा इफेक्टिव की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो हमको बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल भी मिल जाएगा। अब केस 1 क्या होगा, व्हेन जेड इज इक्वल्स टू 0। तो अगर जेड की वैल्यू 0 हो जाए मतलब क्या, जो वाटर टेबल है वो बिल्कुल बेस ऑफ द फुटिंग तक पहुँच जाए। जो वाटर टेबल है वो बिल्कुल बेस ऑफ द फुटिंग तक पहुँच जाए, यहाँ तक आ जाए। सो इन दैट केस इसके पास Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बिल्कुल बेस ऑफ द फुटिंग तक आ जाएगा, Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो Z2 की वैल्यू जब हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। B माइनस Z2 इज इक्वल्स टू B। तो ये टर्म रह जाएगी क्या, B गामा डैश अपॉन B। B से B कैंसिल हो जाएगा तो ये गामा इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सबमर्ज यूनिट वेट के। गामा इफेक्टिव इज इक्वल्स टू सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो गामा इफेक्टिव की वैल्यू की जगह हम गामा डैश पुट करेंगे तो यूनिट वेट ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगी, सी एस डैश एन सी गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ ऑफ बी गामा डैश एन गामा। वहीं दूसरा केस जब Z2 की वैल्यू B हो जाए। Z2 की वैल्यू B कब होगी, जबकि वाटर टेबल कहाँ पर हो, वाटर टेबल यहाँ पर हो। तो Z2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, B के बराबर। तो इन दैट केस क्या होगा, क्या चेंज आएंगे, तो Z2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, B। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला के अंदर गामा इफेक्टिव के अंदर Z2 की वैल्यू B रखेंगे तो ये हो जाएगा B गामा B माइनस Z2 इज, तो Z2 की जगह हमने B रखा तो B माइनस B 0। तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो यहाँ क्या बचेगा, B गामा अपॉन B। तो उस B से ये B कैंसिल हो जाएगा तो गामा इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो अभी गामा इफेक्टिव की वैल्यू को हम गामा पुट कर देंगे तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या फ़र्क आएगा, Q इज इक्वल टू सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू 1/2 B एन गामा इंटू गामा। तो ये चेंज हो जाएगा, ये इफेक्ट पड़ेगा डेप्थ की वजह से उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन। दूसरा एक और मेथड होता है, उसका होता है करेक्शन फैक्टर मेथड। तो वही इक्वेशन हम वापस लिखते हैं, Q इज इक्वल टू सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू हाफ ऑफ बी एन गामा। यहाँ पे अब हमने कुछ करेक्शन फैक्टर इस्तेमाल किए हैं, वो क्या है, आर गामा डैश और गामा एवरेज। तो आर गामा डैश का फार्मूला क्या है, आर गामा डैश का फार्मूला है 1/2 ये मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस Z2 अपॉन बी। Z2 डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल, B इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग। और गामा एवरेज का फॉर्मूला क्या है, बल्क यूनिट वेट गामा Z2 प्लस B माइनस Z2 गामा सैचुरेटेड अपॉन B। अब अगर कंडीशन हम देखें वेयर इफ Z2 इक्वल्स टू 0, Z2 इक्वल्स टू 0 कब होगा, जबकि वाटर टेबल कहाँ तक चला जाए, बेस ऑफ द फुटिंग तक चला जाए। तो Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ 0 रखिए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आर गामा स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। और यहाँ Z2 की वैल्यू 0 रखिए तो ये 0 हो जाएगा। B माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, B माइनस 0 इज इक्वल्स टू B, B से गामा सैचुरेटेड अपॉन B। तो B से फिर ये B कैंसिल हो जाएगा तो गामा एवरेज की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, गामा सैचुरेटेड के बराबर। तो पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी, Q इज इक्वल टू सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू 1/2 B 1/2 गामा सैचुरेटेड एन गामा। तो यही वैल्यू वापस आ जाएगी। अब हम आते हैं लास्ट केस पे, जो थर्ड केस है, जो क्या है, व्हेन द वाटर टेबल इज इन जोन थर्ड एट ए डेप्थ Z3 फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस या ग्राउंड लेवल से। अब क्या हो रहा है कि वाटर टेबल क्या हो रही है, बिल्कुल उसकी फुटिंग से भी ऊपर आ गई है, उसकी फुटिंग के बेस से भी ऊपर आ गई है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ऑल द टर्म्स आर इफेक्टेड। अब जो सेकेंड केस था उसके अंदर क्या था, क्या यहाँ तक था, जो टर्म थी, जो ओवरबर्डन प्रेशर जो था उसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अब क्या हुआ है कि वाटर टेबल कहाँ तक आ गई है, इस जोन तक आ गई है। तो अब ओवरबर्डन प्रेशर जो सॉइल का है उसके अंदर भी चेंज आएगा, तो सारी टर्म्स के अंदर चेंज आएगा, सबको ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी वाटर टेबल। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पहला यूज़ इफेक्टिव पैरामीटर, दूसरा यूज़ वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। तो फर्स्ट वन वी डिस्कस यूज़ इफेक्टिव पैरामीटर। तो यही है फार्मूला, ये फार्मूला हम वापस लिखते हैं,
अब ये गामा इफेक्टिव पैरामीटर मतलब जो कि उसकी सेकंड टर्म है, ये वाली टर्म है, उसके अंदर क्या हुआ, गामा डी एफ एन क्यू था, तो गामा की जगह हमने क्या लिया है, गामा इफेक्टिव। उसका फार्मूला क्या है, एज इट इज़ जो फार्मूला पहले था यही फार्मूला है, बस Z2 की जगह पे इस बार क्या आ जाएगा, Z3। देख लीजिए, Z2 की जगह क्या आ गया, Z3 B DF माइनस Z3 गामा डैश अपॉन DF। अगर वही कंडीशन है, इफ़ Z3 इज इक्वस टू जीरो, Z3 इक्वस टू जीरो कब हो जाएगा, जबकि वाटर टेबल कहाँ तक चला जाए, जबकि वाटर टेबल बिल्कुल इस ग्राउंड लेवल तक आ जाए, तो Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और वाटर टेबल अगर बिल्कुल ग्राउंड सरफेस तक आ गया तो Z3 की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो गामा इफेक्टिव के इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे Z3 की वैल्यू हम ज़ीरो, तो ये टर्म हो जाएगी ज़ीरो। DF माइनस ज़ीरो क्या रहेगा, DF, तो ये पूरा टर्म क्या बच जाएगा, DF गामा डैश अपॉन DF। तो इस DF से DF कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सबमर्ज यूनिट वेट। तो इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो Q इज इक्वल टू C डैश NC, गामा इफेक्टिव की वैल्यू हमने क्या रखी, गामा डैश DF NQ हाफ ऑफ B गामा डैश NY। तो ये चेंज हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यूनिट वेट की जगह कौन सा वेट आ गया, सबमर्ज यूनिट वेट। ओके, अब दूसरा मेथड क्या है, यूज़ टेबल करेक्शन फैक्टर। टेबल करेक्शन फैक्टर के अंदर क्या होगा, वही इक्वेशन है, बस क्या होगा, इस सेकंड टर्म के अंदर क्या होगा, करेक्शन फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, RQ डैश और गामा एवरेज। RQ डैश का जो फार्मूला पहले हमने पढ़ा था वही सेम फार्मूला है, कोई चेंज नहीं होता, बस Z2 की तरह क्या आ जाएगा, Z3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RQ इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस Z3 अपॉन DF, और गामा एवरेज वो भी सेम टू सेम फार्मूला है जो पिछले बार में था, बस Z2 की जगह क्या आ जाएगा इस फार्मूले में, Z2 की जगह इस फार्मूले में क्या आ जाएगा, Z3 आ जाएगा, बस कोई चेंज नहीं करना है। अब इसके अंदर भी दो केस देख लेते हैं, Z3 इक्वल्स टू ज़ीरो। Z3 इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, जबकि वाटर कहाँ तक आ जाए, बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पर आ जाए। तो Z3 की वैल्यू जहाँ पे भी है वहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे। तो पहले RQ डैश वाला RQ स्टार वाले फॉर्मूला में देख लेंगे, करेक्शन फैक्टर जो होता है, तो Z3 की वैल्यू ज़ीरो रखी तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो RQ स्टार इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पे Z3 की वैल्यू ज़ीरो रख दी तो ये टोटल ज़ीरो हो जाएगा। DF माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू DF अपॉन DF 1, तो गामा एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। गामा एवरेज की वैल्यू DF इंटू DF, या तो सॉरी यहाँ पे टर्म आती है, क्या आती है, गामा सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, DF अपॉन DF इंटू गामा सैचुरेटेड, DF से DF कैंसिल हो जाएगा, तो गामा एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा सैचुरेटेड के बराबर। तो वही बस वैल्यू पुट कर दीजिए वापस, तो अब क्या हो जाएगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज व्हाट, CNC 1/2 जो RQ की वैल्यू है, और गामा एवरेज की वैल्यू गामा सैचुरेटेड DF NQ प्लस 1/2 B N गामा और 1/2 गामा सैचुरेटेड। तो ये क्या हुआ, इनकी वैल्यूज़ में जो चेंज हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग भी चेंज हो गई। तो ये दिस इज आर द 3 केसेस विच कैन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द वाटर टेबल ऑन द ultimate bearing capacity of the footing. So here we are discuss all the cases. Okay, now we are finished this lecture.